आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद के मुजाफाती इलाके में पीने के पानी की फराहमी के लिए तकरीबन 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वजीर KT रामाराव ने पीर को बनीकुंडा में अलकापुरी टाउनशिप में ORR के फेज 2 के तहत पानी की फराहमी के कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर बात करते हुए वजीर ने कहा कि 587 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट ORR की हुदूद के तहत देहातों, कॉलोनियों, गेटेड कम्युनिटीज को पानी फराहम करेगा। हैदराबाद के आसपास की तमाम म्यूनसिपैलिटियों को शहर में शामिल किया गया है और ORR में शामिल किया गया और आउटर रिंग रोड को हुदूद के तहत आने वाले गांव भी शहर का हिस्सा हैं। ग्रेटर हैदराबाद GHMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शामिल तमाम देहातों को पानी फराहम किया जा रहा है। शहर के मुजाफात में पानी की फराहमी पर 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वजीर आला गंडीपेट झील को गोंडा पोचम्मा सागर के पानी से भरने का मंसूबा बना रहे हैं। वजीर ने कहा प्रोजेक्ट के साथ महेश्वरम, इब्राहिमपट्टनम, मेडचल, राजेंद्र नगर, कुतुबुल्लापुर, पटेंचेरू हलकों में लोगों को पानी के नए कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी और MLA प्रकाश गौड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। ఒక వ్యూహం ప్రకారం ముందు ప్రజల కనీస అవసరాలు, కనీస మౌలిక వసతులు వాటిని తీర్చాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంటదనే విషయాన్ని వారు మొదటి రోజున చెప్పడంతో పాటుగా గత 7.5 సంవత్సరాలుగా అడుగడుగునా ప్రజల కనీస అవసరాలు ఏవైతున్నాయో వాటికి అనుగుణంగానే వారు తన కార్యాచరణను రూపొందించుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు భారతదేశానికే, భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్న ఎన్నో కార్యక్రమాలకు తెలంగాణ అనే వేదిక అయింది అంటే దానికి కారణం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి యొక్క ముందు చూపు అని చెప్పక తప్పదు. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం హర్ ఘర్ కో జల్ అని చెప్పి ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నది. ఇందాక MP గారు కూడా చెప్పినారు. ఆ కార్యక్రమానికి స్ఫూర్తి ఏది అంటే మన రాష్ట్రంలో మనం అమలు చేసిన మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం. అదే పద్ధతుల్లో 1-2 కాదు, ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు. ఒకప్పుడు అనేవారు వాట్ బెంగాల్ డస్ టుడే ఇండియా డస్ టుమారో, అంటే ఈ రోజు బెంగాల్లో జరిగేది రేపు దేశంలో అమలవుతుందని చెప్పి గతంలో ఒకప్పుడు నానుడి ఉండేది. కానీ ఈ రోజు నానుడి ఏంటంటే భారతదేశంలో నడుస్తున్న వ్యవహారం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఈ రోజు అమలవుతున్న పథకాలు భారతదేశంలో రేపంతా అమలవుతాయనే మాట. ఇది వాస్తవం. ఎందుకంటే ఒక రైతు బంధు మనం ప్రారంభించిన తర్వాతనే దేశంలోని 11 రాష్ట్రాలు మన నుంచి స్ఫూర్తి పొంది వాళ్ళు ప్రారంభించారు. తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా ఆ కార్యక్రమం వచ్చి PM కిసాన్ అనే పేరిట వారు కూడా దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించినారు. అట్లా ఒకటి కాదు, ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి చెప్పుకుంటూ పోతే. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు మంత్రివర్గంలో కానీ, శాసనసభ సమావేశాల్లో కానీ, మంత్రివర్గ సమావేశాల్లో కానీ, శాసనసభ సమావేశాల్లో కానీ ఎప్పుడూ చెప్పే మాట, నేల విడిచి సాము చేయకండి, ప్రజలకు ఏం కావాలనో కనీస అవసరాలు ముందవి చూడండి. అందుకే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వెంటనే పరిష్కరించిన మొట్టమొదటి సమస్య కరెంటు సమస్య. సరే, ఇవాళ మణికొండలో, అల్కాపురిలో మీరు కరెంట్ ఒక వ్యూహం ప్రకారం ముందు ప్రజల కనీస అవసరాలు. वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक़िदा तकरीब को खिताब करते हुए वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव से हैदराबाद के अतराफ और कनाफ के इलाकों में पानी की सरबराही को मुमकिन बनाने के लिए फंड जारी करने पर इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि हैदराबाद में तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत ने मौसम गर्मा में बरक़ी कटौती के मसले को हल करते हुए 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के इक़दाम किए हैं और अब वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव की क़ियादत में अलकापुर टाउनशिप, महेश्वरम, नारसिगी में पीने के पानी के मसले को हल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकन असम्बली प्रकाश गौड़, रुकन कानून साज काउंसिल वानी देवी, MD वाटर वर्क्स दाना किशोर और दीगर लोग मौजूद थे। डेवलपमेंट అయితే ఉందో, జనాభా ఏ విధంగా పెరుగుతా ఉందో, జనాభాకు అనుగుణంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన. దాంట్లో భాగంగా GHMC ఏరియాతో పాటు సరౌండింగ్ లో ఉన్న రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న ఏరియాతో పాటు
హెచ్ఎండిఏ ఏరియాను కూడా బేస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నా ఎవరి నియోజకవర్గం వాళ్ళు ఎవరి జిల్లా వాళ్ళని మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది కాబట్టి మన నియోజకవర్గం, మన ఏరియా, మన లైన్ తీసుకోవాలని కాకుండా ఓవరాల్ గా 50 సంవత్సరాల వరకు మన హైదరాబాద్ సిటీలో డెవలప్మెంట్ బేస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ చేపట్టాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు. గతంలో కూడా మేము చాలాసార్లు వర్క్ చేస్తున్నాం, ఈ ప్రాంతంలో కూడా చూస్తున్నాం. మణికొండనో లేకపోతే నార్సింగ్ లేకపోతే బండ్లగూడ నీళ్లు తీసుకురావాలంటే జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలు ఎక్కడి నుండి ఎట్లా ట్యాప్ చేయాలని చూసే వాళ్ళని తప్పిస్తే కెపాసిటీ ఏ విధంగా పెంచుకోవాలి, ఎట్లా చేయాలనే ఆలోచన గతంలో ఉండేది కాదు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దూరదృష్టికి నిదర్శనం. మన హైదరాబాద్ సంబంధించి ఒక రిజర్వాయర్ సపరేట్ గా పెట్టాలని, భవిష్యత్తులో ఎక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా హైదరాబాద్ కి మాత్రం ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండేటట్టు ప్లానింగ్ చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న మా మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే వారు పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ తో తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాతో పాటు రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న ఏరియాతో పాటు హెచ్ఎండి ఏరియాలో ఉన్న సంబంధించిందంతా కూడా ఈరోజు ప్లానింగ్ వేసుకొని భవిష్యత్తులో వాటర్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఈరోజు 1200 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఆ విధంగా పరిష్కరించడానికి ప్లానింగ్ చేసిన మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. దాంతోపాటు హైదరాబాద్ रियासती वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के बैंक अकाउंट में रास्त 10 लाख रुपए जमा करवाएं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर हर असम्बली हलके से 100 दलित खानदानों को 10 लाख रुपए की माली मुनफैत फराम की जा रही है। आज जनगांव कलेक्ट्रेट में ZDP के इजलास से खिताब करते हुए एराबली दयाकर राव ने बताया कि हल्के असम्बली घनपुर में 24,209 दलित खानदानों की निशानदेही की गई है। इस तरह पूरी रियासत के दलित खानदानों की निशानदेही का काम तेजी से जारी है। वजीर पंचायत राज ने ओहदेदारों को मुतमना किया कि दलित बंधु स्कीम की अमलावरी में लापरवाही न करें, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इजलास में साबिक नायब वज़रा आला कड़ियम श्रीहरी, डॉक्टर D राजा अराकिन मखन्ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दीगर अरकान मौजूद थे। कबल अजी वजीर पंचायत राज ने मुत्तहिदा जिले वरंगल में TRS पार्टी दफ्तर का मुआयना किया, जिसका अनकरीब सदर TRS व वजीर आला के चंद्रशेखर राव इफ्तिताह करने वाले हैं। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो असातिज़ा के 44,000 मखलूआ जायदादों पर फिलफोर तकर्रुरात करें। असातिज़ा की मखलूआ जायदादों के बास रियासत का तालीमी निज़ाम इंतहाई कमज़ोर हो चुका है और तेलंगाना मुल्क भर में तालीम के मैदान में 18वें मुकाम पर पहुंच गया है। रियासत में 7 लाख B.Ed, D.Ed, PET और पंडित ट्रेन टीचर्स हुकूमत के TET के इम्तिहान के इंतज़ार में हैं। ये टीट इम्तिहान मुनक़िद न होने से लाखों बेरोज़गार तरबियती नौजवान ज़हनी तनाव में हैं और माशी तौर पर हालात का मुकाबला करने से घबरा रहे हैं। इसके अलावा अक़लियती एडेड तालीमी इदारों में भी असातिज़ा की हज़ारों नशिस्तें खाली पड़ी हैं। बंडी संजय ने आज अपने एक सहाफ़ती बयान में हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत में तालीमी निज़ाम के इस्तेहकाम और तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए अमली इक़दाम करें और असातिज़ा के फिलफोर तक़र्रुरात के ज़रिए तलबा के तालीमी साल को ज़ाय होने से बचाएं। बंडी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की कि वो रियासत के तालीमी निज़ाम को सियासी हदबंदियों से आज़ाद करते हुए तलबा के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। TSAT तेलंगाना में आज से 8वीं 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। ऑनलाइन क्लासेस 28 जनवरी तक जारी रहेंगी। क्लासेस आज सुबह 10 बजे से TSAT और शाम 5 बजे तक दूरदर्शन यादगिरी चैनल के जरिए टेलीकास्ट की जाएंगी। हुकूमत ने पहले ही ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद के इंतजामात कर लिए हैं। सरकारी स्कूलों में काम करने वाले तकरीबन 50% असातिज़ा को क्लास लेने के लिए कहा गया था। यह मालूम हुआ कि हुकूमत की पहली और कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान तालीमी इदारों की बंदिश के बाद तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया था।
फिजिकल क्लासेस का आगाज 21 सितंबर को केसेस में कमी के साथ हुआ। छुट्टियों को छोड़कर 3 माह की मुद्दत के लिए क्लासेस का इनेकाद किया गया। तमाम केसेस में इजाफे की वजह से स्कूलों को एक बार फिर बंद कर दिया गया और तुलबा को ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत में 31 जनवरी तक तालीमी इदारों को दोबारा खोलने की तैयारी कर रही है अगर कोविड-19 मुस्बित मामलात की रिपोर्ट में कमी वाक़ई होती है तो। वजीर ने कहा कि इस साल न तो इम्तिहान मनसूख होंगे और न ही तुलबा को आला क्लासेस में तरक्की दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने पीर को मांग की कि कोविड-19 से फौत होने वाले लोगों के अफराद खानदान को 50,000 एक्स ग्रेशिया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अदा करे। हैदराबाद सिटी कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने इस इल्ज़ाम को कि रियासती हुकूमत कोविड-19 की वजह से होने वाली अमवात के असल आराद व शुमार छुपा रही है ताकि मुतासरीन के अहल खाना को मुआवजा अदा करने से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि रियासत के मौसूल होने वाले कोविड मुआवजे के दावे मौत की सरकारी गिनती से तकरीबन 7 गुना ज़्यादा हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 3,993 अमवात की रिपोर्ट दी है जबकि 28,969 खानदानों से दावे मौसूल हुए हैं। 24,976 ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। KCR को इस सिलसिले में महकमे सेहत से वजाहत तलब करनी चाहिए। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि 28,969 दावों में से 12,148 खानदानों को मुआवजा अदा कर दिया गया है। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। हुकूमत को 16,821 खानदानों के दावों को मुस्तरद करने की वजूहात पेश करना होगा। समीर वलीउल्लाह ने यह भी मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत अपने रोज़ाना मीडिया बुलेटिन को मौत के सही आदाद और शुमार के साथ अपडेट करे। कांग्रेस कायद समीर वलीउल्लाह ने कहा कि TRS हुकूमत शुरू से ही कोविड-19 की सूरत हाल का गलत इंतजाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने पहले कोरोना वायरस की शिद्दत से इनकार किया और बाद में गैर मनसूबाबंद लॉकडाउन नाफिज किया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि माहिरीन ने आइंदा 2 हफ्तों में कोविड-19 की सूरत हाल में इजाफे का इंतबाह दिया है, लिहाजा TRS हुकूमत को वायरस के फैलाव को रोकने और हलाकतों से बचने के लिए कुछ ठोस इक़दाम करने चाहिए। साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाना लक्ष्मయ్య ने कांग्रेस को मुल्क की वाहिद सेकुलर और दलित मुसलमानों की फलाह और बहबूद पर खिदमत अंजाम देने वाली पार्टी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ही उन तबकों के साथ इंसाफ करती आई है और आइंदा भी करेगी। INN से खुसूसी बात करते हुए लक्ष्मయ్య ने कहा कि कांग्रेस ने 5 मुस्लिम कायदीन को मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला के ओहदे पर फायज किया और एक दलित कायद दामोदर संजीवయ్య को न सिर्फ वज़ीर आला बनाया बल्कि 2 मरतबे कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की सदारत पर फायज किया। इस तरह कांग्रेस ने मुल्क भर में अक़लियतों, दलितों के अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब और दीगर पिछड़े हुए तबकात को सियासत के कलीदी ओहदों पर फायज करते हुए उन तबकों को समाजी धारे में मसावी हुकूक अदा किए, जबकि बीजेपी और TRS तबकों के दरमियान फूट पैदा करते हुए मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हमारे मित्र हनुमंतराव साहब, माजी PCC प्रेसिडेंट, दामोदर संजीवయ్య के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के बारे में ये मीटिंग रखा। इसमें important people have come. Those people who are the celebrations to be conducted the next 1 year during his centenary birth, this thing. So it's really good. It's not a question of Sanjeevayya. Sanjeevayya is the youngest and the first chief minister in Dalit chief minister in Congress. Sanjeevayya, the first Dalit AICC president in India. So ये क्या what is the indication on this? Congress and the people, they are inseparable. So आज देखिए कितने लोगों को, दलित लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। मेरे ख्याल में 5 मुस्लिम लीडर्स को वो इस देश में मुख्यमंत्री बनाए, ट्राइबल लीडर्स भी मुख्यमंत्री बने हैं और OBC लोग भी मुख्यमंत्री बने। क्या आज के पार्टीज, रीजनल पार्टीज या बीजेपी ये कर सकता है क्या? कर रहे हैं क्या? दम है क्या? जो बोलते वो करते नहीं, और लोगों को साथ लेके जाना ये लोगों को नहीं है। वो सेंटिमेंट से प्ले करना,
पावर में आना, पावर में रहना, फिर पावर चलाना, यही काम पे गिमिक्स कर रहे हैं. सो ये अच्छी बात नहीं. संजीव भैया एक एग्जाम्पल फॉर कांग्रेस. कांग्रेस एंड संजीव भैया इज इंसेपरेबल. कांग्रेस इज फॉर ऑल. दैट्स व्हाट दिस मैसेज शुड गो ड्यूरिंग दिस सेंटेनरी सेलिब्रेशंस. थैंक यू. आज हमारे में मुल्क की वसी रियासतों से चलने वाली तेज ठंडी हवाओं की वजह से तेलंगाना के कई हिस्सों में बशमुल हैदराबाद को अगले 6 दिनों तक सर्दी की लहर जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है. बुध और हफ्ते के दरमियान सूरत हाल उरूज पर पहुंच सकती है. तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग के सोसाइटी ओहदेदारों के मुताबिक बुध और जुमेरात को शहर के कुछ हिस्सों बशमुल श्रीलिंगमपल्ली, राजेंद्र नगर, फलक नुमा, कपरा, मूसापेट और एलबी नगर में रात का दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने का इम्कान है. शहर में औसतन कम से कम दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है. हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक तेलंगाना में कुछ मकामात पर सर्दी की लहर का एक और सिलसिला शुरू होने का इम्कान है. उसी तरह तेलंगाना के कुछ अजला में अगले 24 घंटों के दौरान औसत से ज़्यादा बारिश भी हो सकती है. खलीज बंगाल में कम दबाव की वजह से हवाएं तेलंगाना की तरफ चल रही हैं, जिसके नतीजे में रियासत में बारिश हो सकती है. IMD के मुताबिक रियासत के कई अजला में 24 से 30 जनवरी के दरमियान शदीद सर्दी की लहर आएगी. IMD की तरफ से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद के अजला में शदीद सर्दी की लहर रहेगी. साबिक सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी वी हनुमंतराव ने कहा कि तेलुगु रियासत के पहले दलित वजीर आला दामोदर संजीवैया की सदी तकारीब के दौरान मुल्क के नौजवानों को दामोदर संजीवैया की तालीमी और सियासी जिंदगी से वाकिफ करवाया जाएगा. आज मीडिया से बात करते हुए वी हनुमंतराव ने कहा कि सियासत में लोग दौलत कमाने आ रहे हैं, जबकि दामोदर संजीवैया वजीर आला और 2 मरतबे सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी रहने के बावजूद कोई बड़े घर के मालिक नहीं थे. इंतहाई कसमपुरसी में उन्होंने अपना आखिरी वक्त गुजारा. हनुमंतराव ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वज़राए आला से ख्वाहिश की कि वो इस महीना तेलुगु दां हरिजन कायद की सदी तकारीब को आलीशान तरीके से सरकारी तरीके पर मनाते हुए तेलुगु फर्जन को खिराज अकीदत पेश करें. కొంచెం हंड्रेड ईयर्स हो रहे. एक गरीब गांव में पैदा होके पढ़ लिख के मद्रास हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करके आंध्र प्रदेश का पहला हरिजन चीफ मिनिस्टर है. और उन्होंने मरे शौकत 2 मरता ये सीसी का प्रेसिडेंट था, चीफ मिनिस्टर था, मगर कुछ कमाया नहीं. अभी भी झोपड़ी है. राहुल गांधी गया था, देख के आश्चर्य हुआ. तो ऐसा सेंट्रल सेलिब्रेशन करे तो लोगों को, नौजवानों को पता लगता, खवातीन को पता लगता रहे भाई पैसे कमाने के वास्ते आजकल हर आदमी पॉलिटिक्स में आ रहा, पैसा कमा रहा, ये बिजनेस हो गया. अगर संजीव के नक्शे कदम पे चले तो लोगों का उद्धार होगा और रियल पॉलिटिक्स चलेगा. संजय का काम करना चाहिए. दोनों को भी लेटर, KCR को लेटर लिखता हूँ. कमिटी में डिसाइड हुआ, सभी लोग यूनानिमस बोले. जगनमोहन रेड्डी को लेटर लिखता हूँ. सेंटरी सेलिब्रेशन करेंगे तो नौजवान खवातीन को ये पता लगता पॉलिटिक्स में कैसे वफादार लोग भी है, लोगों को बताना है.
100 ईयर्स हो रहे, एक गरीब गांव में पैदा होके पढ़ लिख के रियासत भर में जारी फीवर सर्वे आज चौथे रोज में दाखिल हो गया है। महकमे सेहत के जराये के मुताबिक रियासत भर में तकरीबन 35 लाख अफराद का फीवर सर्वे किया गया, जिसमें से आज तक 1,78,000 अफराद कोरोना से मुतासिर पाने के बाद उन्हें कोरोना किट फराहम करते हुए घर पर रहकर इलाज करने की तरगीब दी गई। ग्रेटर हैदराबाद में 4 रोज से जारी फीवर सर्वे में 15 लाख मकानात का अहाता करते हुए सर्वे का आगाज किया गया, जिसमें ज्यादातर हैदराबाद के स्लम इलाकों में मुकीम अफराद का फीवर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें इस बात का पता चला है कि हर 10 अफराद में से 2 या 3 अफराद में कोरोना की अलामतें पाई जा रही हैं। DHO अनुराधा ने बताया कि फीवर सर्वे में आशा वर्कर्स, GHMC वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं और सिर्फ बुखार आने पर दवाओं का किट और कोरोना की अलामत सामने आने पर कोरोना किट फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। यह फीवर सर्वे 10 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि ग्रेटर हैदराबाद व अतराफ व अकनाफ में फीवर सर्वे के दौरान 30,000 अफराद में कोरोना की अलामतें पाई गईं। करीमनगर के कोत्तापल्ली मंडल के चिंताकुंटा में इतवार की रात टाटा एस गाड़ी और कार के दरमियान टक्कर के नतीजे में 20 लोग जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासिरीन वेमुलावाड़ा मंदिर में पूजा करके वापस आ रहे थे। जख्मियों को मुल्लुगू और महबूबाबाद अजला के बाशिंदे हैं और पुलिस ने बताया कि टाटा एस में तकरीबन 15 लोग सफर कर रहे थे और कार में 5 लोग सवार थे। राहगीरों ने वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उन्होंने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों के अगले हिस्सों को नुकसान पहुंचा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पीर को APJAC की जानिब से PRC के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत की और इस मौके पर कई अहम रिमार्क्स भी दिए। हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि क्या उनकी तनख्वाहों में इजाफा या कटौती की गई है, जिसका दरखास्त गुजार के पास कोई जवाब नहीं था। अदालत ने कहा कि वो मुनासिब मालूमात के बगैर दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं। उसने वाज़ेह किया कि PRC को चैलेंज करने की मुलाजिमीन करने का कोई हक नहीं है। अदालत ने दरखास्त गुजार से रिपोर्ट के लिए हुकूमत से राब्ता करने को कहा और समाअत मुलतवी कर दी। ट्रेड यूनियनों के रहनुमाओं को उनके सामने पेश होने का अदालत ने हुक्म दिया। पहले दिन हुकूमत और मुलाजिमीन अदालत में अपने दलाइल दे चुके हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि PRC और HRAAP तकसीम एक्ट के तहत नहीं दिया गया है। उसके बाद AP के एडवोकेट जनरल ने हुकूमत की तरफ से दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि मुलाजिमीन ने हुकूमत को किस तरह धमकियां दी। AG ने सवाल किया कि वो हुकूमत को हड़ताल पर जाने की धमकी कैसे दे सकते हैं। वो अदालत में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। AG ने अदालत को तवज्जो दिलाई कि मुलाजिमीन आंगनवाड़ी और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने से रोक रहे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि हुकूमत ने यूनियन रहनुमाओं को मुज़ाकिरात में मदऊ किया था, जो अभी तक नहीं आए हैं। चंद्रायन गुट्टा से हफ्ते को एक खातून 2 बच्चों के साथ लापता हो गई। नुसरत अंसारी 24 साल, सैयदा जीना फातिमा 5 साल और सैयदा जोहा फातिमा 3 साल के साथ यह कहकर घर से निकली कि वो किसी काम से जा रही हैं और घर वापस नहीं आई। इतवार को खातून के शौहर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। खातून का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है और टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों से कॉल की तफसीलात का रिकॉर्ड तलब किया है। हैदराबाद के सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नफ्सियाती मरीज बेटे ने अपनी मां को कत्ल कर दिया और छोटी बहन को शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुधीर नामी शख्स सुबह 2:30 बजे वर्जिश कर रहा था। उस पर मां पापम्मा ने उसे डांटा कि आधी रात को क्यों वर्जिश कर रहा है। मां के डांटे पर सुधीर ने लोहे की सलाख से मां के सर पर मारा।
और जब छोटी बहन बीच में आकर उसका बीच बचाव करने की कोशिश की तो माँ को बचाने की कोशिश की तो उसने बहन को भी उसी राड से मारा। इत्तला पाकर सुल्तान बाजार पुलिस मौके पर पहुंच गई। उस वक्त तक पापम मर चुकी थी और बहन शदीद जख्मी हालत में थी। पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया और मां की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस को पता चला है कि सुधीर पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, जिससे वो नॉर्मल नजर नहीं आ रहा था, जिससे पता चल रहा था कि उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। पुलिस ने सुधीर को अपनी तहवील में ले लिया और इलाज के लिए उसे भी दवाखाना मुंतकिल किया। चित्तौड़ जिले की एक सब जेल के सुपरिटेंडेंट के घर में काम करने वाली एक खातून को शक की बुनियाद पर सुपरिटेंडेंट और मुकामी पुलिस ने 2 लाख रुपए की चोरी के इल्जाम में 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके इस कदर ज़दोकोब किया कि उस बेकसूर खातून को चलने में भी मुश्किल हो रही है। तफसीलात के मुताबिक सुपरिटेंडेंट के घर से 2 लाख रुपए गायब हुए गए, जिस पर घर में काम करने वाली खातून से सुपरिटेंडेंट और उसके घर वालों ने पूछगछ की। जब मुलाजिमा ने लाजमी का इजहार किया तो उसे मारा पीटा गया, फिर पुलिस के हवाले किया गया। खातून को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में डालकर सब इंस्पेक्टर और दीगर ओहदेदारों ने लाठियों से उसके पैरों और पीठ पर मारा कर उससे पूछताछ की। मुलाजिमा ने वहां भी अपनी लाइलमी का इजहार किया। बाद में सब इंस्पेक्टर को फोन आया और पता चला कि गलत फहमी हुई थी और फिंगरप्रिंट की वजह से यह गलती हुई। वो रकम तो तूने नहीं ली थी, ताहम हम तुझे, और उन्होंने उस औरत को आज़ाद कर दिया और ये कहा कि बाहर जाकर किसी को भी इस बारे में मत बताना। खातून को मर्द ओहदेदारों ने पीट कर जख्मी कर दिया और उसे डराया भी कि बाहर जाकर मत बताया जाए, नहीं किसी को न बताएं। खातून को चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। సార్ నేను మైథిలా పర్మిట్లో పనిచేస్తాను. నేను వేణుగోపాల్ రెడ్డి వాళ్ళ ఇంట్లో, ఆయన సబ్ జైల్లో సూపర్వైజరు వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేస్తాను. సోమవారం 11 గంటలకు వాళ్ళ ఇంటికి పోయినాను పనికి. నేను పనికి పోతే వాళ్ళు డబ్బులు లేదనేసి మొగుడు పిల్లలు కొట్లాడుకొని ఉన్నారు సార్, దగ్గుతూ ఉన్నారు. నన్ను అడిగినా సార్, డబ్బులు ఏమైనా చూసినావా, ఎత్తుకొని పోయినావా అనేసి. నేను లేదు, నేను తేవట్లేదు, నేను చూడలేదు అట్లా అన్నాను. లేదు నువ్వు ఎత్తుకొని ఉండవు అట్లా అన్నారు. మళ్ళీ నన్ను వెతకమన్నారు ఇల్లంతా. నన్ను మేము 3 గంటల వరకు వెతికినాం సార్, డబ్బు దొరకట్లేదు. సరే పోయి మీరు ఫోన్ చేసుకొని రాబోండి, మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాము రాండి అన్నారు. చెప్తే మళ్ళీ నేను ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే నాకు 1 స్టేషన్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది సార్, నీ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చిందమ్మా, నువ్వు స్టేషన్ దగ్గర రావాలి, మీ ఇంటి అని పిలుచుకోండి అట్లా అన్నారు. మేము స్టేషన్ దగ్గర పోతే నన్ను ఎస్ఐ గారు విచారించినారు. నన్ను విచారించి, లేదు సార్ నేను చూడలేదు సార్, నాకు తెలియదు సార్ అట్లా అన్నాను. మళ్ళీ నన్ను ఫింగర్ ప్రింట్ అంతా చేతిలో తీసుకున్నారు. తీసుకొని రాత్రి 9 వరకు స్టేషన్లో పెట్టుకొని ఉన్నారు. మళ్ళీ సరే నువ్వు రేపు తెల్లారి రావాలి మన స్టేషన్ దగ్గరికి అట్లా అన్నారు. పంపించినారు మన సంతకం తీసుకొని. మరో రోజు మేము స్టేషన్ దగ్గరికి వచ్చినాము సార్. వస్తే 12:30 స్టేషన్ దగ్గరికి వచ్చినాము. వస్తే 1 గంట నుంచి సార్ 1:30 వరకు నన్ను ఒక రూమ్ లో వేసుకొని తలుపు మూసేసి, చేతులు కట్టేసి, నోరంటూ మూసేసి, లాఠీలతోనూ షూ కాలుతోనూ చేతులతోనూ అట్లు కొట్టినారు సార్. ఒకే ఒక్క ఆయన మగడే సార్ కొట్టిందని చెడ్డ మాట్లాడి కొట్టినాడు సార్. కొట్టేసి మళ్ళీ సీఎం దగ్గరికి పిలుచుకొని పోయినారు. ఆడిపోతే కూడా ఆయన ముందు కూడా కొట్టినారు సార్ లాఠీలో. అంతా కొట్టేసి మళ్ళీ ఒక ఫోన్ వచ్చింది సార్. ఆయనకి ఫోన్ వస్తే ఆయన, నీకు పైన ఏం తప్పు లేదమ్మా, నీది సింగపింట అంతా పెట్టినాము, మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, నీకు చిన్న ఒక ప్రూఫ్ కూడా దొరకట్లేదు, అది వాళ్ళ భార్య అదే అంత పొరపాటు జరిగింది, అది సరేమ్మా. एक हवलनाक वाक़े में बैंक मुलाजिम की बीवी ने जहेज पर हरासान करने पर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक धर्मावरम के नेसाई पेट का रहने वाला वेंकटा कृष्णा तादी मेरी ब्रांच में SBI बैंक में काम करता है। 2016 में उसने YSR कड़पा जिले के पुरुदुट्टूर से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े कोंडैया और गंगा देवी की बेटी वेंकटा सुजाना 26 साल से शादी की थी। शादी के दौरान सुजाना के वालिदीन ने उसे 18 लाख रुपए का जहेज और 300 ग्राम सोने के जेवरात दिए थे। जोड़े ने कुछ अरसे पुरअमन जिंदगी गुजारी और उसकी इनकी 2 बेटियां भी हुई। ताहम सुजना और वेंकटा कृष्णा के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसी पस मंजर में सुजाना ने हफ्ते की आधी रात के बाद घर की 3री मंजिल पर फांसी लेकर खुदकशी कर ली।
पुलिस ने इतवार की सुबह जाय बखू का मुआयना किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए धर्मावरम सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। दरी असना मुतफी के वालिदैन वेंकटा कृष्णन के खानदान के अरकान के साथ बहस में पड़ गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसने इजाफी जहेज के लिए उन पर तशद्दुद किया। उनकी बेटी को उन लोगों ने मार डाला। इस सिलसिले में डीएसपी रमाकांत से शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने वाक़या का मुकदमा दर्ज करके मुतवफ़ी के शौहर को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।